Hello everyone. In last lecture, we have discussed about the structure of the ocean floor. Okay. In last lecture, we have discussed about the continental shelf. Okay. And continental slope. Okay. Today we are going to discuss about the abyssal plains, mountain ridges and plateaus, marine deeps and marine trenches. Okay. And marine, we will talk about the marine deposition. Okay. So let us revise the last chapter's explanation. Okay. We have seen the ocean relief in the last lecture. So in which we have discussed the continental shelf. So what is meant by continental shelf? As you can see in the picture. See, you can see here. Okay. See here. This is the continent, this is the coast, and this is the continental shelf. Okay. So the land near the coast and submerged under the sea is called continental shelf, as you can see in the picture. देखो, एक ऐसी लैंड की जो है क्या है, कोस्ट से लग कर है. You can see the land which is nearer to the coast, okay, and it is submerged under the sea. Sea के अंदर डूबी हुई है. It is called as you can see in the picture. This is called as the continental shelf. Okay, so that we have discussed. हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया है कि इसकी डेप्थ कितनी है, 200 meters below the mean sea level. Then it is very important in the point of view of humans activity. For example, it is the fishing ground in this continental shelf is called as the fishing ground. Okay, and as this part is shallow and sunlight reaches its bed. Okay, algae and plankton grow here. ये जो एरिया है यहाँ पे algae और plankton की ग्रोथ होती है, which is the food for the fishes, and obviously fish is the food of the humans. Okay, उसी के साथ साथ natural gas, mineral oil, various minerals भी यहाँ पे पाए जाते हैं. ठीक है, obtained by mining the continental shelf. जब continental shelf को माइन करते हो तो आपको यहाँ से जो है नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल और वेरियस मिनरल्स भी मिलते हैं. ओके, सो फॉर इसका एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मुंबई हाई लोकेटेड नियर ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द अरेबियन सी. सो अरेबियन सी जो है, ठीक है, अब आपको पता है कि अरेबियन सी कहाँ है. so, इंडिया है. इंडिया के साउथ साइड में क्या है, इंडियन ओशन. तो उसका ही ऊपर का जो एक्सटेंडेड पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड एज द अरेबियन सी. तो अरेबियन सी में जो मुंबई हाई जो एक प्लेस है लोकेटेड, दैट इज लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ये जो मुंबई हाई है कहाँ पे लोकेट है, दैट इज लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ अरेबियन सी. और यहाँ से इट इज द सोर्स फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस. और यहाँ से हमको जो है मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस मिलता है. Now next on what we have talked about, that is the continental slope. Okay, so after the extent of continental shelf is over, the slope of the seabeds becomes steeper, as you can see in the picture. दिख रहा है आपको? ये देखो, ये स्टीप जो है, ये यानी स्टीप किसे बोलते हैं आपको मैंने पहले बोला है. ये दो टाइप के स्लोप होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये सीधा है, दैट इज द स्टीप. और ये सब माउंटेन, इसका जो स्लोप है थोड़ा इस टाइप का कॉर्नर रीच है, इसे बोलेंगे सीधा, स्ट्रेट, विद दैट इज कॉल्ड एज द स्टीप. ओके, एंड ये एकदम धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, ये स्लोप देखो, दैट इज कॉल्ड एज द जेंटल स्लोप. ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो स्टीप जो है वो एरिया दिख रहा है. ठीक है, as you can see in the picture very well, that is called as the continental slope. ठीक है, that is called as the continental slope, as you can see in the picture. See, this is the continental slope. Okay, so the slope of the sea becomes steeper towards the seabed, and this is called as the continental slope. Okay, let us know something about the continental slope. The depth of this slope is from 200 meter to 3600 meters. कितनी है इसकी डेप्थ, कितनी है, कहाँ तक के ये अंदर रहता है, कितने, 200 मीटर to 3600 meters तक के ये डीप है.
and in some places it is more, कहीं कहीं पे ज्यादा भी है. Okay, the continental slope is narrow. The lower boundary of the continental slope is considered to be the boundary of the continent. इसकी जो lower boundary है, that is considered to be the बाउंड्री ऑफ कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट की जो बाउंड्री, एक कॉन्टिनेंट को लगकर दूसरा कॉन्टिनेंट है, आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन दी वर्ल्ड. ठीक है, तो ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये एक दूसरे की यानी बीच में की जो बाउंड्री है, ओके, दैट इज फॉर्म जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टिनेंटल स्लोप. कि ये जो है कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये कॉन्टिनेंट के दो कॉन्टिनेंट के बीच की जो बाउंड्री है वो कौन फॉर्म करता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, दैट इज द कॉन्टिनेंटल स्लोप. ओके, the continental slope is narrow and the lower boundary of the continental slope is considered to be the boundary of continent. Okay, now next is we are having the abyssal plain. What is that? Abyssal plain, as you can see in the picture. See here. This is the abyssal plain. अभी ये प्लेन में और हमारे प्लेन में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी प्लेन जगह, जहां जो जगह जो है वो प्लेन रहेंगी, फ्लैट रहेंगी. ठीक है, थ्रू आउट द रीजन, तो उसे बोलेंगे हम प्लेन. ठीक है, सो बियॉन्ड द कॉन्टिनेंटल स्लोप लाई द एबिसल प्लेन. अभी टू द फर्दर साइड, किसके, टू द फर्दर साइड ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. To the further side of continental slope there lies a plain and that is called as the abyssal plain. Okay, which are the flat part of the seabed. seabed का ये क्या है, flat part है. ठीक है, the abyssal plain consists of various submerged landforms like hills and plateaus. मैंने अभी बताया था कि hills और plateaus जो है वो सिर्फ जमीन के ऊपर ही नहीं पाए जाते हैं, तो पानी के अंदर भी पाई जाती है. तो वो जो सबमर्ज यानी पानी के अंदर डूबे हुए जो लैंडफॉर्म्स है, दैट आर लाइक द हिल्स एंड प्लेट्यूज. ओके, तो ये जो है हिल्स एंड प्लेट्यूज दैट आर सबमर्ज लैंडफॉर्म, ओके, आर द पार्ट ऑफ एबिसल प्लेन्स. अंडरस्टूड? नाउ वी विल टॉक अबाउट द माउंटेन रेंजेस एंड प्लेट्यूज. देखिए, ये प्लेट्यूज और माउंटेन रेंजेस आपने जो है और सरफेस पे पड़े होंगे. आई हैव टॉट देम टू यू. मैंने समझाया था आपको कि माउंटेन रेंजेस क्या होते हैं, हिल्स क्या होते हैं, माउंटेन्स क्या होते हैं, प्लेट्यूज क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई है. तो सेम माउंटेन रेंजेस एंड प्लेट्यूज आल्सो अकर इनसाइड द वाटर, दैट इज द सबमर्ज. वी कैन सी द सबमर्ज. ओके, दैट इज जस्ट वो जो हिस्सा, जो ऐसे जमीन का हिस्सा जो पानी में डूबा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज सबमर्ज. ओके, सो द हिल्स एंड द माउंटेन फाउंड ऑन द ओशन बेड. ओशन बेड मैंने पहले ही बताया था आपको क्या होता है कि बॉटम ऑफ द ओशन इज कॉल्ड एज द ओशन बेड. तो जो हिल्स और माउंटेन्स वो ओशन के बॉटम में है, ठीक है, दैट आर कॉल्ड एज द ओशन बेड के अंदर है, फाउंड होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द सबमर्ज हिल्स एंड माउंटेन. एंड दीज हिल्स आर 100 किलोमीटर्स वाइड. सोचो, दीज हिल्स आर 100 किलोमीटर्स वाइड. 100 किलोमीटर, थिंक अबाउट द 1 किलोमीटर कितना होता है. आपको 1 किलोमीटर डिस्टेंस चलने के लिए कितना टाइम लगता है, तो थिंक अबाउट द 100 किलोमीटर डिस्टेंस. सो दीज आर 100 किलोमीटर्स वाइड एंड thousands किलोमीटर ऑफ लॉन्ग. देखो, सोचो कितना लॉन्ग होगा. अब 5 फीट का पर्सन, अब 6 फीट का पर्सन देखते हो तो ऐसा आपको जो है देखना पड़ता है. तो थिंक अबाउट इट, thousands किलोमीटर ऑफ लॉन्ग है. ठीक है, and peaks of some submerged hills come above the sea level. कभी कभी सी लेवल से ऊपर भी आ जाती है, तो आपको सबमर्ज माउंटेन की हिल दिखाई देती है बेटा, सी से भी दिखाई देती है. ओके, गेट इट? सो दे आर विजिबल टू द मराइन आइलैंड. ओके, एंड Iceland in the Atlantic Ocean, Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal are the example of marine island. These are the examples of marine islands. कौन सा? Iceland in the Atlantic Ocean and the Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal that falls in India. Okay, that is located, sorry, falls no, it is that is located in the India are the examples of marine islands. Okay, now summits of some marine islands. Summits यानी क्या होता है? Peak होता है. For example, suppose this is the
mountain. So that peak is called as the summit, or you can say peak. Okay, the top of the mountain is called as the peak. So the summit of some marine islands are flat and extensive. कई कई की क्या होते हैं, देखो ऐसा भी होते हैं, कहीं जो पीक होते हैं एकदम ये देखो पॉइंटेड होते हैं, तो कहीं ऐसे भी होते हैं, फ्लैट भी होते हैं, कहीं जो पीक होते हैं ऐसे फ्लैट भी होते हैं, ठीक है. So the summits of some marine islands are flat and extensive and they are called as the oceanic or submarine plateaus. जब ये फ्लैट देखो, ये पीक आपको क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, पॉइंटेड पीक, लेकिन ये जो है ये क्या है, फ्लैट है. ये क्लियरली आपको ये जो है ये पीक जो है क्या दिखाई दे रहा है, ये फ्लैट दिखाई दे रहा है. तो जब ये फ्लैट होता है दिस इज कॉल्ड एज द प्लेट्यू. ये टेबल लैंड है, प्लेट्यू किसे बोलते हैं, टेबल लैंड है, ऊंची लैंड है, लेकिन ऊपर का जो टॉप है वो कैसा है, फ्लैट है. These are called as the plateau. तो जब किसी भी माउंटेन के जो टॉप है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है, then we call it as a plateau. उसे क्या बोलेंगे हम, plateau. Okay. So they are called the oceanic or submarine plateaus. जो जमीन के ओशन के अंदर है that are called as the oceanic or submarine plateaus. For example, Chagos Plateau in the Indian Ocean. हमारे इंडियन ओशन की अगर बात करेंगे तो चागोस नाम का जो प्लेट्यू है, this is the example of submarine plateau in Indian Ocean. Okay, now we will talk about the marine dips and marine trenches. As you can see in the picture, see here, you will see here, this is the marine dips, and this is the marine trenches. Here you can see. Okay, so let us know what is mean by marine dips and marine trenches. Okay, so on the ocean bed there are some landforms which are deep, narrow and steep. ठीक है ना, ओशन बेड पे कोई कुछ ऐसे भी लैंडफॉर्म्स है कि जो बहुत डीप है, बहुत नैरो है, बहुत स्टीप है. ओके, एंड दे आर कॉल्ड एज द मराइन ड्रिप्स, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. देखो मरीन ड्रिप्स आप देख सकते हो. देखो ओशन के एकदम डीप होते हैं, ठीक है, नैरो होते हैं पोर्शन, ठीक है. दीज आर कॉल्ड एज द मरीन डिप्स. ओके, एंड द डिप्स while the deeper one, ऐसे गड्ढे कि जो बहुत नीचे तक के जाते हैं, बहुत डीप होते हैं, that are called as these trenches. उसे क्या बोलेंगे हम, trenches. क्या बोलेंगे उसे, trenches. So the trenches are thousands of meters deep from the sea level. देखो sea level से thousands of kilometer जो है वो नीचे रहते हैं. The Mariana Trench in the Pacific Ocean is the deepest trench in the world. Please underline, it's very important question point of view of examination as well as for the GK question. अब देखो आपको केबीसी वगैरह चालू है ना, छोटे बच्चों के लिए अभी एपिसोड आ रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको जीके का नॉलेज बढ़ाना है तो आप प्लीज रीड द साइंस ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक्स, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज होता है उसमें. ओके, सो Mariana Trench is the deepest trench in the world, which is located in the Pacific Ocean. Okay, and the mid-oceanic submerged hills and marine trenches are geologically the most active areas of the ocean bed in the world. यहाँ पे जो volcanoes वगैरह आते हैं ना, हमेशा इसी रेंज में आते हैं, इसी एरियाज में आते हैं. That's why this mid-oceanic submerged hills and marine trenches are geologically the most active areas of the oceanic bed in the world. Okay, and these areas are also earthquake prone areas also. यहाँ से earthquake भी आते हैं, यहाँ से volcanoes भी आते हैं, and earthquake and volcanic eruptions occurring in the ocean bed gives rise to tsunami in the nearby coastal areas. आपने you must have heard about the name tsunami. जब पानी के अंदर भूकंप आते हैं, अपने अर्थ के ऊपर है, सरफेस के ऊपर आने वाले earthquake तो देखे ही होंगे, it is very visible.
लेकिन जब पानी के अंदर सुनामी आता है तो आपको पता किसके कब चलता है, जब पानी से जो है, ओशन से जो है बड़ी बड़ी वेव्स निकलने लगती है, और जब वो वेव जो है कोस्टल रीजन में रहने वाले जो लोगों के घर तक के वो जो पानी जो है चला जाता है, बहुत दूर जोर से वेव्स उठती है, तो इट डिस्ट्रॉय द कोस्टल एरियाज एंड दैट आर कॉल्ड एज द सुनामी। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द सुनामी। सुनामी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे सुनामी आए गए हैं। जस्ट थिंक, जस्ट सर्च फॉर इट, आप सर्च करो एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सुनामीज। अभी जो करंट सेंचुरी यानी सपोज 2000 टू 2021 जितने भी वोल्केनोज हैं, सॉरी सुनामीज आके गए हैं, यू हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सुनामीज। आपको उसके ऊपर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ कहाँ आया था, कितने लोग डाई हुए और कितना डैमेज हुआ, डे एंड डेट, बस इतना देखना है, बाकी कुछ नहीं। और हो सके तो मैग्नीट्यूड देखना है तो मैग्नीट्यूड, बस इतना। दिस इज द होमवर्क टू यू। ओके, ये आपको होमवर्क है इस चैप्टर के लिए। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द मराइन डिपोजिशन। ठीक है भाई, मराइन डिपोजिशन क्या होता है? द मराइन बेड्स डिपोजिशन यानी कुछ भी जो है सेटल डाउन, कुछ भी ऐसी जो चीजें हैं वो जो सेटल डाउन हो जाते हैं, देन वी कॉल इट एज अ डिपोजिट। ठीक है, अपने साथ जैसे फॉर एग्जांपल रिवर अपने साथ सैंड लेके आती है, पेबल्स लेके आते हैं, छोटे छोटे टुकड़े पेबल्स यानी छोटे छोटे स्टोन के टुकड़े लेके आती है। तो जब वो पानी बहता है तो उसके साथ साथ जो अपने साथ जो है कुछ ना कुछ पत्थर, कुछ ना कुछ सैंड, कुछ ना कुछ मिट्टी अपने साथ लेके आती है, दैट आर कॉल्ड एज द सेडिमेंट्स। और जब रिवर की स्पीड कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो जो है डिपोजिट कर देता है। तो जो डिपोजिट करता है, यानी सैंड हुआ, पेबल्स हुआ, दैट आर कॉल्ड एज द डिपोजिट्स। समझ में आया? So marine beds are the deep parts of the world in the respective regions, and hence various deposits are found in these parts. So number one, the deposits are as follows: pebbles, clay, soil that brought about the rivers, glaciers, glaciers, etc. from the continents. कौन लेके आते हैं अपने साथ? जब रिवर बहती है, जब सी बहते हैं, तो ये अपने साथ क्या क्या लेके आते हैं? पेबल्स, क्ले एंड सॉइल। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी चीजें लेके आती है और समवेयर जहाँ पे स्पीड इसकी कम हो जाती है वहां पे जाके डिपोजिट कर देती है। तो इट इज द वन ऑफ द काइंड ऑफ डिपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, यस, द डिपोजिशन ऑकर्स मेनली ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड दीज आर कॉल्ड एज द मराइन डिपोजिट्स। यूजुअली इसका जो है, जैसे लैंड छोटी सी जो है, पेबल्स है, क्ले है, सॉइल है, ये कहाँ जाके डिपोजिट होती है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। यूजुअली ये जो डिपोजिशन होता है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में होता है। दैट्स व्हाई ओके these are called as the marine deposits. These are called as the marine deposits. Lava and ash erupting out of the volcanic eruption also found here, and fine sand soil particles are deposited on the large scale. Remains of the marine plants and animals are mixed in these deposits, and this mixture is made up of fine particles and lies in the form of the fine clay. This is around 30% of the deposit. यानी जितना डिपोजिट होता है ओशन में, उसमें से 30% जो डिपोजिशन होता है वो जो वोल्केनोज आता है। तो आपको पता है कि मैंने इसके पहले पढ़ाया है, वोल्केनोज में लावा एंड एशेस जो है वो क्या होती है? बाहर निकलती है। तो लावा और एशेस जब बाहर निकलती है तो जो छोटे छोटे फाइन सॉइल जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वो डिपोजिट हो जाते हैं वहां पे लार्ज स्केल में। उसके साथ साथ जो एक्वेटिक प्लांट्स है, एनिमल्स है, जो मर जाते हैं जमीन के अंदर, इसके ओशन के अंदर, वो भी जाके क्या होता है, वो भी डिग्रेड होते हैं और उसके जो फाइन जो मिनरल्स है वो भी डिपोजिट हो जाते हैं इस एरिया में। तो ये जो डिपोजिट है ये 30% ऑफ द डिपोजिट है, यानी 100 में से 30% जो डिपोजिट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ओके, हाँ, to understand the form of marine life in the ocean and the availability of the minerals on the ocean bed, these deposits are very important. अगर आपको कौन से मिनरल जो है ओशन में डिपोजिट होते हैं, या फिर मराइन लाइफ कौन से एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, कौन सी प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स यहाँ पे पाई जाती है, इसकी स्टडी करने के लिए डिपोजिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, sedimentary rocks are formed due to the depositing of layers or the layers of the sediments and pressure of the sea water. देखो, जैसे प्रेशर जो हमारे यहाँ जो sedimentary rocks बनते हैं volcano on the surface of the earth, volcano आने के बाद on the surface of the earth जैसे sedimentary rocks बनते हैं, उसी प्रकार के sedimentary rocks जो है वो ओशन के अंदर भी बनते हैं।
अब ये जो एक सेडिमेंट की लेयर, दूसरी सेडिमेंट की लेयर, तीसरी सेडिमेंट की लेयर, चौथी सेडिमेंट की लेयर, ऐसे करते करते एक सेडिमेंट दूसरा जो है ये लेयर बनती जाती है और इससे बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. That is just because of the pressure of the seawater. Okay, and the last one is the besides some human include material is also found here, and these include sewage, solid waste, radioactive material, waste chemicals, plastic. आपको पता है ये सारी चीजें आपको कोर्स पे मिलेंगी, ठीक है. So these waves prove hazardous to the hydrosphere, and these materials are extremely harmful to the marine life and its environment. आपको पता है कि अगर ये प्लास्टिक, ये सारी चीजें, रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये बहुत ही हार्मफुल है. किसके लिए? जो एक्वेटिक लाइफ के लिए. देखो अभी एक्वेटिक लाइफ भी आपको कम मिलेंगी जस्ट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. आपने हम जो पोल्यूशन करते हैं क्रिएट, इट इज वेरी डेंजरस टू द एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स हु लिव्स इन द ओशन. ओके, सो it is just harmful, it is extremely harmful to the marine life and environment, and though the polluting components are less, their nuisance value is more. कम भी अगर पोल्यूशन हो रहा है लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, वो बहुत ज्यादा है. ओके, so that was all about the ocean relief, and along with that we have also discussed about the mineral deposition. Only two topics are remaining that we will discuss in the next lecture. Till then, goodbye. Have a nice day, all.